ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਤੇ USA ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। USA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਡੇਟਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਟਲ ਜਵੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। 27 ਤਰੀਕ ਸੰਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਹਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ, ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਕੈਥਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਥਲ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 28 ਤਰੀਕ ਸੋਮਵਾਰ USA ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ। ਤੁਸੀਂ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ USA ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। USA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਜ਼रूर हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। जी जी, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲਈ? देखिए आज की डेट में USA के लोग काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच में वो हैं, बड़े अवेयर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स USA जाना चाहते हैं, तो हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को टाइम टू टाइम हम बुलाते रहे हैं। अब एक यूनिवर्सिटी आ रही है, सुबह 10 बजे हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में होंगे वो, और तकरीबन 3-4 घंटे वो कंटिन्यूसली हमारे ऑफिस में है। 10 से 2 जिसमें ऑन स्पॉट असेसमेंट एंड एडमिशन दिया जाएगा। और इसमें कोई डेलीगेट्स इंडियन नहीं है, वो सारे फॉरनर्स हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, जो अब्रोड मतलब अगर कनाडा USA जाना चाहते हैं तो वो अपना ऑन स्पॉट असेसमेंट करा सकते हैं, और एडमिशन के लिए पॉसिबल होगा तो एडमिशन भी बच्चों को दिया जाएगा। जिवें अज हाईलाइट हो रहा है USA विदाउट IELTS, विदाउट TOEFL, विदाउट SAT, बहुत कुछ हो रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਹੜੀ यूनिवर्सिटी आ रही है, की रिक्वायरमेंट मांगती है बच्चे? देखिए, एक तो ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 5.5 बैंड है, और जो बच्चा बैचलर्स है, मास्टर्स के लिए जा रहा है, उसके लिए 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है। आपका क्वेश्चन है कि भाई आज की डेट में कि भाई विदाउट IELTS, मैं बोलता हूँ जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है सिर्फ उसी का वीज़ा है। और मुझे नहीं लगता कि, मुझे ऐसा लगता है कि जिस बच्चे ने IELTS नहीं की है, तो मतलब उस 10 में से कोई एक बच्चा होगा जो अच्छी इंग्लिश बोल लेगा, जो वीज़ा ले सकता है। तो मैं ऐसे बच्चों को हमेशा डिमोरलाइज करता हूँ। जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है उसको तो IELTS करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज ये एक तरह से तो टोटली फेक काम हो रहा है कि भाई आप विदाउट IELTS USA जाओ। उसमें क्या है कि बच्चे से पैसे, मतलब चाहे वो फंडिंग के लगा लो या फिर अपनी सर्विस चार्ज लगा लो, इस तरह से तकरीबन बच्चा 1 लाख रुपए के नीचे कम से कम आ जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कैपेबल हो तो अपनी IELTS जरूर दो। IELTS के साथ ही अगर आप फाइल लगाओ तो विल बी मोर बेटर। IELTS ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ है ये चीज़। देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट्स, ये इस एज से आप लोग भी निकले हैं, मैं भी निकला हूँ, तो होता क्या है कि हर कोई एक शॉर्टकट मारना चाहता है। शॉर्टकट का मतलब ये है कि भाई एक देखो हमारा जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे, वो हिंदी का, पंजाबी का या फिर हरियाणवी कल्चर है, तो इंग्लिश हमने पढ़ी नहीं है। इस कारण से बच्चा, क्योंकि यूज टू है नहीं इंग्लिश से, तो इसलिए वो डरता है। और दूसरी बात, अगर जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी भी है, वो सोचता है छोड़ो ना यार, एक उसको मतलब पका पकाया काम मिल रहा है कि एक कंसल्टेंट उसको विदाउट IELTS के लिए गुमराह कर रहा है, तो बच्चे को लगता है कि भाई यार वो जो सुनना चाहता है, क्योंकि उसको वीज़ा ही चाहिए ना। अगर कोई उसको ये बोल दे कि विदाउट IELTS वीज़ा, तो वो तो सुनना तो यही चाहता है ना। अगर वही सुनना चाहता है, वही अगर उसको सुनने को मिल गया तो वो कोशिश करता है, ठीक है। बट वो ये नहीं देखता कि उसके करियर की बात है, कल अगर वीज़ा रिजेक्ट होगा तो उस कंट्री के लिए वो वीज़ा लगा ही नहीं सकता। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ USA ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਬਿਲकुल ਸੁਨਸਾਨ, बहुत घट। वो परसेंटेज 10% रह जाती है, 10% भी ज़्यादा कहेंगे तुम। तो ये जो हमारी मार्केट है ना, ये बड़ी बड़ी मतलब वर्स्ट कंडीशंस हैं कि कोशिश करते हैं कि चल यार तेरे तो पैसे बनेंगे, ठीक है, और चलो 25-30 हज़ार रुपये तो बच्चा दे के जाएगा। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर।
ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋशिश ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀ जा रही है। किस तरह देख रहे हो इस चीज़ ਨੂੰ? देखिए जिस हिसाब से ये चीजें चल रही है ना इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि इसके दिन लदने वाले हैं। ऐसे बंदों के तो खासकर लदने वाले हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो रॉन्ग प्रैक्टिस कहीं ना कहीं एक दिन आपको नीचे लेके जाएगी। कब तक? पैसा तो यार हर कोई कमा रहा है, ठीक है, और एक जेन्युइन गाइडेंस के साथ अगर आप पैसा कमाते हो, जेन्युइन अगर काम करते हो, तो आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जेन्युइन काम करोगे, स्टूडेंट्स आपके पीछे जेन्युइन ही आएंगे। जेन्युइन आएंगे तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, मेहनत कम करनी पड़ेगी, उसका वीजा ऑटोमेटिक आएगा, वीजा आएगा तो पैसा भी बनेगा। लेकिन कुछ लोग वास्तव में ये चीज कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स को भी या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा काम ना करो। अगर आपकी, जो आपको खुद पता है कि भाई आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी वो एक रिस्क लेते हैं। चलो 1 लाख की तो बात है या 2 लाख की बात है, क्योंकि आजकल एडवर्टीजमेंट भी ऐसी आ रही है कि फीस आफ्टर वीजा पहुंच के दो, ठीक है, और यहाँ सिर्फ कुछ पैसे दो, तो वो यूएसए की फीस तो बाद में ही जाती है सर, ये तो बच्चे को भी समझना होगा। तो ये बट बच्चे को लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या आ गया, लेकिन रूल ही ऐसे हैं कि बच्चा आफ्टर वीजा फीस दे। ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ यूएसए ਜਾਣ वाली प्रोफाइल स्टूडेंट ਲਈ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी, टोटली इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। और जब वीजा ऑफिसर देखता है ना, जब फॉर्म उसका DS-160 फॉर्म होता है, वो भरा जाता है, सबमिट होता है, उस टाइम पे मोस्टली कहीं ना कहीं एम्बेसी डिसीजन ले लेती है कि इसको वीजा देना है या नहीं देना है। दूसरा, फिर बच्चा जब इंटरव्यू देने जाता है तो वहाँ पे पानी का पानी, दूध का दूध हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये टोटली इंटरव्यू बेस्ड वीजा है, और टोटली एंड टोटली एम्बेसी उसका कॉन्फिडेंस देखती है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। और साथ साथ में मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चा अपने पूरे जो भी असेसमेंट टेस्ट है वो कंप्लीट करे। जैसे IELTS या TOEFL की रिक्वायरमेंट है वो करो, GRE GMAT की है वो भी दो, अगर सेट की रिक्वायरमेंट है वो भी दो। प्लस में एक साथ 3-4 यूनिवर्सिटीज में बच्चा अप्लाई करे। 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एम्बेसी पागल नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ वो जेन्युइन बच्चों को वीज़ा देती है। एक आध बच्चा हो सकता है जो निकल जाए, जिसका लक बहुत अच्छा हो, और चलो वीजा ऑफिसर किसी और मूड में बैठा हो तो चलो उसको वीजा दे दिया, अदरवाइज जेन्युइन स्टूडेंट्स को वीजा चाहिए। DS-160 ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, I-20 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 3-4 ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਏਜੰਟਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ I-20 ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਰੈਪਿਊਟਡ यूनिवर्सिटी तो थोड़ी रेलेवेंट होवे, तो मैटर नहीं करता एक ने या 4 ने। देखिए यहाँ पे भी है ना एक डिबेट है पूरा। वीजा ऑफिसर किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी एडमिट्स यू हैव, लाइक मतलब कितने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से आपने I-20 मंगवाई है, ठीक है। तो उसमें से बच्चा, वीजा ऑफिसर थोड़ा सा सेटिस्फाई होता है, उसको लगता है कि बच्चे ने वास्तव में रिसर्च किए हैं, ठीक है। और एक अच्छी यूनिवर्सिटीज है और उसके पास एक ही है, ठीक है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन है कि वीजा ऑफिसर उस टाइम क्वेश्चन करता है, वो बोलता है नहीं जी मैं तो इसी में जा रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरे लिए रिलेवेंट है तो मैं वही अदर्स, तो कहीं ना कहीं वीजा ऑफिसर वहां उसको भी दे सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है वीजा ऑफिसर पे। बट अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए, एक बच्चा 3-4 में अप्लाई करता है तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव जाता है। ਜਦੋਂ DS-160 ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਫੀ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ DS-160 ਭਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਗਲਤ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੇ ਬੱਚਾ अनजेन्युइन या अनट्रेन्ड अनएक्सपीरियंस्ड बंदे को सिलेक्ट कर लेंदा? देखो अगर बच्चा गलत हाथों में जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चे का करियर तो स्पॉइल होना ही होना है, क्योंकि DS-160 फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है लाइक जिस पे वीजा लगता है एक तरह से, मेन सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन बच्चे की वहां चली जाती है। अगर वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, पूरी एक्यूरेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट रिजेक्शन के रूप में आ सकता है। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे को ये रिसर्च करना चाहिए कि किस टाइप का कंसल्टेंट उसने हायर करना है, उसको नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीजें देख के अगर बच्चा एक कंसल्टेंट को हायर करता है तो इट विल बी मोर बेटर फॉर स्टूडेंट्स करियर। सो वो कंसल्टेंट ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਦੀ DS-160 ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਦ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ USA ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ एक्चुअल होंदी की है इंटरव्यू जिहदे विच बच्चे नूं कॉन्फिडेंस दिखाना पैंदा? देखिए जो US की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू बेस्ड है, लेकिन इसमें कई चीज़ें वीज़ा ऑफिसर देखता है। बच्चे की पर्सनालिटी, बच्चे का कॉन्फिडेंस, बच्चे का रिसर्च। अगर बच्चे के ने रिसर्च कर रखे हैं,
अगर उसको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज प्लस और स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज के बारे में पता है, यूएस के बारे में पता है, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या आउटकम होगा ये पता है, अगर उसने वो रिसर्च कर रखा होगा तो बच्चों का ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अगर उसने रिसर्च कर रखे हैं, सेल्फ स्टडी कर रखे हैं, उसके नोट्स बना रखे हैं, वीजा ऑफिसर क्वेश्चन करता है, तो बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर है। तो ये चीजें मैटर करती है। बच्चा रिसर्च करके कॉन्फिडेंस के साथ बोले तो वीजा ऑफिसर को लगता है यस ही इज द जेन्युइन स्टूडेंट, ही और सी जो भी है स्टूडेंट, और इसको राइट है पढ़ने का। तो ये चीजें मैटर करती हैं जी, बिल्कुल मैटर करदियां। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋਣਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ यूएसए जिन्ना प्रमोट हो रहा है, जिन्ना अप्लाई हो रहा है? देखिए सक्सेस रेट वास्तव में इतना हाई नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस, अगर जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं तो 10 में से 6 या 60% तक हम कह सकते हैं, और जो बच्चे 5, 5.5 बैंड पे अप्लाई कर रहे हैं और इंग्लिश उसकी अच्छी नहीं है तो वहाँ तो 30-40% तक भी बात है। 30-40%। बट जी अज वड्डी ਆਪਾਂ एडवरटाइजमेंट्स, होर्डिंग्स या अलग-अलग जरिए बच्चों तक पहुँच देख रहे हैं भी साडे ऑफिस आओ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜੱਜ ਕਰ सकता वाकई फैक्ट्स है नहीं ने कि सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी वजह चीज़ें की जा रही हैं? बच्चे को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि भाई क्या नाम है, उनके वीज़ा सक्सेस रेट क्या है, उन्होंने वीज़ा लगवाए भी हैं या नहीं लगवाए हैं। लगवाए तो स्टूडेंट के पेरेंट्स से मिल सकते हैं। मान लो बच्चा जा चुका है कि भाई कंसल्टेंट बोल रहा है जी उसके तो मतलब बच्चे जा चुका, वो बच्चा तो अप्लाई कर चुका है, बच्चा अप्लाई कर चुका है, उसके पेरेंट्स तो हैं या वीज़ा तो हम देख सकते हैं। ठीक है, हर एक कंसल्टेंट कोशिश करता है जिसका वीज़ा लगे वो फेसबुक पे ऐड हो, तो वो दिखा दो भाई कहाँ है वो बच्चा, ठीक है, उसका वीज़ा कौन सा लगा है। तो ये चीज़ें अगर देख के अगर करे तो ज़्यादा बेटर है। प्लस में ये देखना चाहिए कि वो जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जा रहा है वो किस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है, वो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट है, उसकी रैंकिंग क्या है, किस एरियाज में पड़ती है, इन सब चीज़ों का ध्यान बच्चे को रखना चाहिए, तभी कुछ ना कुछ सक्सेस रेट हाई रहेगा। गवर्नमेंट फंडेड जिन्हों सरकारी भी कह सकते हैं आप, जो वो यूनिवर्सिटी के विच बच्चा एडमिशन लैंदा तो की पॉजिटिव की एडवांटेज रहती है बच्चे लिए? देखिए गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं वेटेज होता है इस चीज़ का, क्योंकि उस कंट्री की जो जिस कंट्री की एम्बेसी है और उसकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो एक इस चीज़ का वेटेज है क्योंकि गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। मैं ये नहीं कहता प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की नहीं होती, बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी बात, उनको कोई लालच नहीं है किसी टाइप का, तो उनको चाहिए जेन्युइन स्टूडेंट्स, तो उनको लगता है दूसरा कंट्री या उसकी एम्बेसी भी ये प्रमोट करना चाहती है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, तो ये मैटर करता है और वेटेज कहीं ना कहीं हाई होता है इस बात का। फंड्स ते फीस नूं लैके की फॉर्मैलिटीज़ ने की रिक्वायरमेंट रहनगियां, किवें शो किया जा सकता फंड्स, किवें फीस कितनी जाती है अप्रोक्सीमेटली की कहना? देखिए जो फीस है वो $15,000 भी है, 20 भी है, $25,000 भी है, मतलब 8 लाख भी है, 7 लाख भी है, 14 लाख भी है और 12 लाख भी है। डिपेंड करता है आपने किस टाइप का टेस्ट है आपका, किस टाइप की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज आपने चूज किया है। अगर हम बात करें कि ये जो फीस है, ये ध्यान रखना कि एक तो किसी को कैश नहीं देनी, क्योंकि ये आफ्टर वीजा है। कैश भी देते हैं बच्चे कैश देते हैं। मैं आपको इस बारे में बताऊंगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है 2-3 जगह मेरे मतलब इस 10 साल के करियर में मैंने 5-7 ऐसे केस देखे हैं जिसमें लोग पैसे लेके भागे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर जब आपका वीजा अप्रूव हो तब आप प्लीज अपनी फीस का डीडी बनवाइए या डायरेक्ट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को भेजिए। बिफोर वीजा की बात करें तो फंड्स दिखाने होते हैं 24-25 लाख के, तो वो आप करंट के फंड्स भी दिखा सकते हो, एक दिन पुराना फंड्स भी चल सकता है। तो वो आपके पास जो 8-10 लाख रुपए तो आपके वैसे भी लगने हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप सेविंग में डाल सकते हो और इधर उधर से थोड़ा बहुत पकड़ के वो भी डाल के तकरीबन 20-25 लाख रुपए दिखा के आप बच्चा जा सकता है। तो फंड्स किसी को परसेंटेज देने से बच सकता है। तीसरा, बिफोर वीजा तकरीबन 25,000 से लेके 40,000 रुपए का खर्चा है। कुछ लोग यहाँ पे 2-3 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं इस चीज के। तो वो किस चीज का है? एक तो आपकी एप्लीकेशन फीस होती है, लाइक जिस यूनिवर्सिटी जो कॉलेज में जा रहे हो, किसी की $50, किसी की $100, किसी की $150, मैक्सिमम $200। इसके अलावा जो कुरियर, अगर मान लो कुरियर गया तो कुछ यूनिवर्सिटीज कुरियर नहीं मांगती, कुछ यूनिवर्सिटीज कुरियर मांगती है। जिसकी कुरियर नहीं मांगा इट मीन्स ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। कुछ यूनिवर्सिटीज कुरियर मांगती है, जहां कुरियर मांगती हैं वहां उसके 3-4-5,000 रुपये और एक्स्ट्रा लग सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चे के I-20 आ जाती है, I-20 आने के बाद $160 तकरीबन 10,000 रुपये एम्बेसी फीस है, वो भी एक्सिस बैंक में जमा होते हैं।
और इसके अलावा एक $200 होती है सर्विस फीस, तकरीबन 12,000। अगर ये सारा कैलकुलेट करें तो 25, 30, 40 हज़ार रुपये बनते हैं जो बच्चे के लगते हैं। वीजा आएगा तो बच्चे को फीस यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को देनी है, वीजा तो बाद, अप्रूवल तो बाद। ट्यूशन फीस हमेशा, ये यूएसए का रूल है कि वीजा लगने के बाद। सेम एज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में क्या है कि एआईपी आता है, एआईपी आने के बाद बच्चे को फीस ट्रांसफर करनी पड़ती है, तब उसका पासपोर्ट डिस्पैच होता है। लेकिन यहाँ पे पासपोर्ट बच्चे के हाथ में होगा वीजा लगने के बाद, तब बच्चा वो फीस दे जी। सो इन्हां चीज़ां नूं ध्यान देण जिहड़ी चाहीदा बच्चे नूं, इहदे लई खास एक उपराला 28 तरीक सोमवार 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ तक यूएसए ਦੀ यूनिवर्सिटी नाल बच्चे नूं मिलाण दा उपराला हो रहा है। एक सैमीनार किया जा रहा है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰਨਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏਗਾ। यूएसए ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ फायदा है एक सही जानकारी का वो लै सकते हैं। सो हुण गल करते हैं जिहड़े कैनेडा जाना चाहते हैं, उन्हां लई भी उपराला है जी। 26 तरीक करनाल, 27 तरीक पटियाला ते 3 अक्तूबर कैथल वैन्यू चल रहा, तुसीं वो देख के विजिट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ते असैसमेंट दी जाएगी। कैनेडा नूं लैके भी काफ़ी बच्चे मिले होने कि मिसगाइडेंस कित्थे है, बच्चा की नहीं प्रॉपरली उहदे तक पहुँच पा रहा, की समझ नहीं पा रहा, जिहड़ी अज आपां गल कर रहे सी ऑफ द रिकॉर्ड भी, की कहना है? देखिए, कनाडा एक तो ना चूजी बच्चे लेता है जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हो, जैसे कि हम हर बार बोलते आए हैं कि बच्चे का परसेंटेज अच्छा होना चाहिए लास्ट एजुकेशन में, मेन सब्जेक्ट्स में परसेंटेज ठीक होनी चाहिए, 50+, 55+, कहीं कोई कॉलेज 60 और 65 भी मांगती है। आज की रिक्वायरमेंट 6 बैंड, नो लेस देन 5.5, रिलेवेंट कोर्स, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने ओपन स्कूलिंग से कर रखी है तो प्लीज़ अपनी फाइल मत लगाओ, बहुत कम चांसेस हैं। जो ओपन स्कूल से पास आउट होकर के अच्छी परसेंटेज ले लेते हैं उसके लिए वीज़ा चांसेस लेस रहेंगे हमेशा से। ओपन स्कूल एक्सेप्टेबल नहीं है कनाडा से? कुछ कॉलेज लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन वीज़ा ऑफिसर जो मैंने आज तक देखा है कि 10 में से 2 या 3-4 वीज़े आए होंगे, 10 के 10 नहीं आते हैं। ठीक, न्यूजीलैंड तक एक्सेप्ट, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो जिन्होंने ओपन स्कूल किया कैनेडा दे विच जिवें दस रहे ने प्रदीप जी, वीज़ा चांसेस घट ने, बट ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ये एक्सेप्ट करते हैं। कैनेडा उन्होंने थोड़ा जिहा घट रेशो दे विच सक्सैस रेट देखने दे विच आ रहा है। हुण जिहड़े सैमीनार्स हो रहे हैं की सोच लैके किए जा रहे, क्यों किए जा रहे नहीं? देखिए, जैन इनटेक नज़दीक है, ठीक है, सीटें फिल होती जा रही हैं। दूसरी बात, हमारे पास बच्चा जम्मू से आता है तो क्या हम स्टूडेंट्स के उस शहर में नहीं जा सकते? ये जो सेमिनार्स किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को नॉलेज दिया जाए पर्टिकुलर कॉलेज और कंट्रीज़ के बारे में। वहाँ पे मेरी टीम प्लस कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ताकि उस शहर में आकर हम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मिल सके। दैट इज़ द मेन थिंग। सबसे बड़ी बात है कि हम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, क्योंकि कुछ वर्किंग्स में होते हैं वो नहीं पहुँच पाते, तो उन पेरेंट्स को वहाँ पर मिला जाए। दूसरा, उनको भी, हमें भी मतलब चांस मिलेगा कि हम उनको दिखा पाएं कि व्हाट इज वी आर लाइक वेस्ट नॉर्थ है क्या, और उसके डोर टू डोर स्टूडेंट्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये सारा उपराला तो चल रहा है, बट अज भी बड़ा अफसोस होंदा जो बच्चा ये पूछता है भी कंडीशनल ऑफर लेटर की होंदी है जी, किनू मिलेगी, ਇਹਦਾ फायदा की रहिंदा? ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾਓ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ? देखो, कंडीशनल ऑफर लेटर का मतलब ये है, अगर आपकी कोई कंडीशन कंप्लीट नहीं है, वो कंडीशन कुछ न कुछ हो सकती है, आइल्स की हो, वो हो सकती है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की हो। अगर वो कंप्लीट नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन मीन टाइम आपका टाइम सेव हो जाएगा। कंडीशनल ऑफर लेटर है, जैसे ही वो कंडीशन आपकी कंप्लीट होती है तो आपके पास टाइम बच जाएगा 20-25 दिन का। जैसे आपका आइल्स की बात करें, आइल्स में आपने अभी पेपर देना है, ठीक है, बट आप अप्लाई कर सकते हो। कंडीशनल ऑफर लेटर आ गया, कल ने जैसे ही आपकी टीआरएफ आती है आइल्स की, आप वो कॉलेज को दो, मतलब कंसल्टेंट को दो, कंसल्टेंट कॉलेज को देता है, तो वो अनकंडीशनल बन जाता है, तो बच्चे का कहीं ना कहीं टाइम सेव हो जाता है। दैट इज द कंडीशनल ऑफर लेटर। वो अनकंडीशनल ता होनी है जो बच्चे की कंडीशन कंप्लीट होगी, कंडीशन कंप्लीट होगी। सो जैन इनटेक ਲਈ ਵੀ कंडीशनल ऑफर लेटर ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਹਲੇ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਫਿਸ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी,
देखिए मोस्टली मंडे को मैं अम्बाला में होता हूँ, और अगर देखा जाए तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 4 दिन मैं चंडीगढ़ ऑफिस में होता हूँ। बट बीच में कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ अपॉइंटमेंट के साथ ही मिले, नंबर जो चल रहे हैं उस पर कि भाई मेरी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। मोस्टली मैं 4 दिन तो चंडीगढ़ में हूँ, बट कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि किसी दूसरे ऑफिस में भी बैठना पड़ सकता है, या डेलीगेट्स आ गए, या शूट पे जाना पड़ गया, रिकॉर्डिंग पे आप लोगों ने बुला लिया, तो ये सारी चीज़ें भी कई बार बीच में आ जाती हैं। अदरवाइज मैं मंडे अम्बाला हूँ, और कुरुक्षेत्र में हफ्ते में 1 दिन जाता हूँ, वो मेरा अभी टाइम फिक्स नहीं है। और ये जैसे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये मेरे चंडीगढ़ ऑफिस में फिक्स है। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਫਿਸ नहीं है कोई वेस्टर्न ओवरसीज ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾर्ड ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ बहुत डिमांड कर रहे हैं। जी श्योर, देखिए हमारा चंडीगढ़ ऑफिस है, वैसे चंडीगढ़ को सारा सराउंडिंग्स कवर करता है, लेकिन वी हैव द प्लान कि भाई हम जलंधर, अपना लुधियाना और पटियाला जल्दी हम अपने ऑफिस खोलेंगे, बट इट टेक टाइम्स। नहीं राजधानी तो है ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ हरियाणा दी है, मेन तो पंजाब च चंडीगढ़, बट चंडीगढ़ बच्चा बहुत आता है, तो आप देखो जम्मू से बच्चा वहाँ पे है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, चाहे ऑफिस नहीं है बट अलग अलग समय हर शहर दे विच विजिट हर सेमिनार्स में, मतलब हर शहर में हम आ रहे हैं। दूसरा एक फायदा और भी है चंडीगढ़ का, कि चंडीगढ़ में जैसे हमारा आयल सेंटर है, अच्छे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, प्लस में फाइलिंग के लिए बच्चे अच्छे चल रहे हैं, तो डेलीगेट्स टाइम टू टाइम बहुत आते हैं यहाँ पे। मोस्टली मतलब हर वीक में 3-4 डेलीगेट्स बैठे होते हैं, कभी यूएसए का, कभी कनाडा का, कभी ऑस्ट्रेलिया का, कभी आयरलैंड का। तो वो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये फायदा हो जाता है चंडीगढ़ ऑफिस का, कि भाई वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से मिल लेता है। लेकिन अगर आप छोटे शहर में ऑफिस खोलते हो, या है आपके, जैसे मेरे पूरे हरियाणा में ऑफिस है और चंडीगढ़ मतलब पंजाब में भी प्लान है, तो ये वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है कि वहाँ डेलीगेट्स पूरे नहीं पहुँच पाते, या टाइम टू टाइम उनकी शॉर्टेज होती है, बड़ी शॉर्टेज के लिए वो आते हैं, तो वो मेजर्स ऑफिस में जाना पसंद करते हैं जी। सो कोई भी मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਯੂਐਸਏ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ प्रदीप जी द्वारा सर्विसेज लै चुके हैं, वीज़ा आ गया, बट वो खुशी साझी करना चाहते हैं थोड़े नाल, एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं वेस्टर्न ओवरसीज बारे। आओ मिलते हैं कुछ बच्चों को। Hello, my name is Lakhvinder and I am from Bathinda. I passed out my 12th in 2013 and I have done my IELTS, and I scored 6 band in it. And I want to thank to Western Overseas to send me to abroad so that I may study there. And I especially want to thank to Pradeep sir to offer me this, and that's all I want to say about overseas. My name is Mohit and I got 5.5 minutes in IELTS, and after that applied for the student visa through the Western Overseas, and I got my Australian visa in just 1 month, and I am thankful to the staff of Western Overseas. This is my visa. Hi, my name is Nitish and I have applied through Western Overseas. I belong to Ambala city, and I did my bachelor's in technology in computer science, and after that I had a work experience of 2 years, and after that I applied for a master's program in Canada, and Western Overseas entirely guided me for TOEFL as well, and they also guided me how to do the visa process, and I am very happy, and me and my family is also very happy, and finally I am going to Canada in fall. Hello everyone, my name is Davinder Singh and I am from village Balana, district Ambala. I got 6 men overall, and after that I applied for my file from Western Overseas and I got my visa in 10 days. I am very thankful to Western Overseas and all the teachers of Western Overseas and staff member, and this is my visa. Once again, thanks a lot. Hello, I am Kamaldeep from Brada. I pursue my IELTS from Western Overseas, and I got 6 bands in IELTS, and after that I apply my file in the Western Overseas, and the staff and the Pradeep sir helped me a lot to achieve my Canada visa. I really thankful to the staff of Western Overseas and Pradeep sir to got my Canada visa. हम आपके स्टाफ से बहुत अच्छी तरह सहमत है, ये स्टाफ बहुत अच्छा है, आप अपने बच्चों को यहाँ से आइल्स करवाएं। सो ये सी जी कुछ बच्चे जिन्हों ने प्रदीप जी द्वारा वैसटर्न ओवरसीज वाला सर्विसेज लईਆਂ ने, तो थोड़े नाल अपनी खुशी साझी की है। बहुत बहुत मुबारक सर, ये वीज़ा ਜਿਹੜੇ आए हैं, तो अगों भी उम्मीद करते हैं ਜਿਹੜੇ बच्चे उम्मीद लैके आ रहे हैं सही कैरियर काउंसलिंग की उन्होंने मिलती रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद अज के शो के आने भी। सत श्री अकाल। सो धन्यवाद सारे दर्शकों का, टैक्नीकल टीम का जिन्ना सदका शो तुहाडे तक पहुँच रहा है। अज के शो को इत्थे खत्म करते हैं, अपने दोस्तों मने दिओ इजाजत। सत श्री अकाल।